Welcome to all of my students. Now we are discussing about the matter of class 10, board CBSE, book NCRT, exercise 9.1 according to new syllabus. Now, first question is a circus artist is climbing a 20-meter long rope. That is the 20-meter long rope, and here see figure 9.11. Here into the questions there will be there is given the picture, and here is the AB is the rope, okay, that is 20-meter length, and which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. Here is the AB is the vertical pole, and from A it is tightly stretched. Okay, that means 20 meter. AB is the vertical pole. Find the height of the pole. You have to find out the value of AB, and if the length made by the rope with the ground level is 30 degree, here is the 30 degree. Clear? तो ग्राउंड लेवल क्या है 30 डिग्री. 30 डिग्री निकालना होगा. यहाँ पर जो एंगल हो रहा है 30 डिग्री से रोप ग्राउंड का साथ टाइट है. तो हियर इज गिवन ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल दैट इज परपेंडिकुलर, and AC is the length of the rope that is given 20 meter, that is called hypotenuse, and find AB. AB means height of the pole. From the right angle triangle we get, according to the trigonometrical function, sin theta. This is the theta. This is the theta. Sin theta equal to P by hypotenuse. That means AB by AC. AB by AC. Sin theta. Theta here is theta equal to क्या है? थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री. थीटा क्या है 30 डिग्री. साइन 30 इक्वल टू ए बी बाई ए सी इक्वल टू 20. क्लियर? नाउ साइन 30 का वैल्यू कितना है? साइन 30 का वैल्यू है हाफ. साइन थीटा इक्वल टू हाफ. द हाफ इक्वल टू ए बी बाई 20. दैट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2ab इक्वल टू 20. दैट मीन्स ए बी इक्वल टू 10 मीटर. देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. That is the answer. Okay. Now we are going to question number 2. That is the question number 2. The tree breaks due to the storm, and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. 30 degree with it. Clear? ताले क्या हुआ ना, यहाँ पर जो ट्रीज है, नारियल के ट्रीज, ये क्या है स्टॉर्म में जो झड़ आ रहा है उससे क्या हुआ, बादल से गिर गया और यहाँ से टूट गया. तो ए बी इज द ब्रेकिंग पार्ट विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड दैट इज द थीटा. दैट इज द थीटा ऑफ द राइट एंगल. क्लियर? एंड ए सी इक्वल टू क्या है ना, हियर इज ऑल्सो गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Top touches in the 8 meter. That is the 8 meter length. Okay? Find the height of the tree. Find the height of the tree. We have to find out AC. Clear? Now, how will we process? How will we proceed? কেমন করে বলতো না, length of the tree यहाँ पर दिखाओ AC. Broken part BA is transferred to BA dash. क्या बोला ना, BO को हम BA dash पिक्चर दे दिया. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द ब्रोकन टॉप फुट ऑफ द ट्री एंड द ब्रोकन टॉप इक्वल टू CA dash, and which is given 8 meter. Find the right angled triangle BCA, from the right angle triangle BCA dash we get कि now we know that the tan theta. देखो यहाँ पर कैसे कंसीडर करेगा, हम लोग को क्या मालूम है, बेस मालूम है हमको. BC मालूम होना चाहिए. BC मालूम होने से ट्री का थोड़ा चीज़ मालूम हो जाएगा, और नहीं तो इसको मालूम होना चाहिए, जब ब्रोकन पार्ट भी मालूम हो जाएगा. तो हमारा tan थीटा में क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी. P कौन है, ए P है परपेंडिकुलर, बाई B मीन्स बेस, मैंने BC बाई CA डैश. tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, BC बाई 8, एंड tan 30 का वैल्यू 1/√3. ये तो मालूम है हम लोग का.
बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी सी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, हियर इज द बी सी इज क्या है, बी सी इज देखो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी सी बाई सी ए डैश परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पर बेस यही है, परपेंडिकुलर यही है, तो बी सी बाई 8, ये तो गिवन 8 है, 8 लिख दिया, tan थीटा का वैल्यू 1/√3, तो बी सी इक्वल टू क्या है 8/√3 मीटर, तो बी सी मिल गया। लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द ट्री, है ना, टू फाइंड लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री बोला। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ द ट्री, दैट इज एसी, यही निकलना होगा। तो एसी का अंदर क्या क्या है ना, बी सी है और ए बी है। ए बी कौन है ना, ए डस बी डस है, ए डस बी है, ए बी जो है, ए बी जो है वही ए बी डस है, यही तो ब्रेक करके गिरा ना, समझे ना, समझे, बस क्लियर हो गया दिस ब्रेक। ऐसे चलो हमको मालूम होना चाहिए, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड ए डस बी। तो ए डस बी मिलने के लिए यहाँ पर एंगल थीटा 30 मालूम है और बेस मालूम है, तो बेस और ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज दोनों मिला के क्या फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है, पहले सम्स में किया, साइन थीटा इक्वल टू क्या मालूम है, नहीं साइन नहीं, साइन थीटा, ये तो परपेंडिकुलर मिल गया ना, तो परपेंडिकुलर से इसको ए भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर यही नहीं किया। ठीक है, क्यों ना, बेस 30 हाइपोटेन्यूज से कौन फॉर्मूला है, साइन मीन्स याद रखना P बाई एच, कॉस मीन्स B बाई एच, टैन मीन्स दिस बाई दिस। कॉस फॉर्मूला यूज़ करने से भी आंसर आ जाता है, क्यों ना, हम लिखेगा कॉस 30 इक्वल टू क्या लिखेगा 8 बाई बी ए डस, कॉस 30 का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, चले ए डस भी निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बी सी यूज़ किया, क्यों ना, पहले लाइन में बी सी हमको मिल गया, इसीलिए बी सी यूज़ किया। तो बी सी को कैसे मिलेगा, बी सी और कौन को, हाइपोटेन्यूज को यूज़ करो। बी सी आपने पहले सम्स में किया हम लोग, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इसका वैल्यू, इसका रिलेशन क्या है, साइन थीटा में होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, हाइपोटेन्यूज बस पुट करो, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू पहले मिल गया 8/√3, और बी ए डैश लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बी ए डैश इक्वल टू 8/√3 इंटू 2, दैट मीन्स 16/√3, क्लियर, 16/√3 हो गया। देखो साइन 30 इक्वल टू पी बाई हाइपोटेन्यूज बी सी बाई बी डैश, बी सी का वैल्यू पहले मिल गया यहाँ पर, बी सी इक्वल टू 8/√3, 8/√3 पुट करो, बी ए डैश दैट मीन्स 16/√3 मीटर, क्लियर हो गया। पहले बी ए डैश मिल गया, बी ए डैश मीन्स बी ए है, बी ए डैश जो है बी ए भी सेम है, चलो बी ए मिल गया। चलो हाइट ऑफ द ट्री ए सी इक्वल टू क्या होगा ना, ए बी प्लस बी सी, बी ए डैश प्लस बी सी, बी ए डैश का वैल्यू क्या है 16/√3, और बी सी का वैल्यू क्या है 8/√3, दोनों मिला के मिला 24/√3, क्या इसका यूनिट क्या था, मीटर, 24/√3 मीटर, क्लियर। आप इसको शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स करने से क्या होगा, देखो शॉर्ट्स नीचे √3 है, नीचे भी √3 से मल्टी करो, और ऊपर भी, नीचे जो करेगा ऊपर भी सेम करना है, समझे ना, क्या सेम करना है। तो नीचे √3 मल्टी करने से क्या होता है, सिर्फ 3 आएगा, √3 का स्क्वायर मीन्स क्या है, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये तो मालूम है तुम लोगों का, 3 है, और 24 ऊपर 24√3, 3 को काटेगा 8√3, देयरफॉर हाइट विल बी 8√3 मीटर, दिस इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्वेश्चन का ड्राइंग कर लेगा तो पूरा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द क्वेश्चन इज सो इजी, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही उसका एलिमेंट ज़्यादा होगा, वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, याद रखना, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन है, वैल्यू ज़्यादा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं, वो कोई बात नहीं,
पहले ठीक से पिक्चर ड्रॉ करो तो सम हो जाएगा. Always remind it, you have to draw the picture and after that you get the way for solving it. ठीक है? You have to draw picture. Don't afraid to see the sums. Okay? देखो, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. 2 स्लाइड क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है. जो बच्चा लोग जो स्लीप कर रहा है ना, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, एक 5 years का एज के लिए, बिलो अंडर 5 years, एंड शी प्रिपेयर्स टू हैव टू ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर. देखो यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ किया, 1.5 मीटर हाइट किया, ये बिलो 5 years के लिए. और इज इंक्लाइंड क्या ना 30 डिग्री. क्या है थीटा, क्या है 30 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर. और दूसरा जो बनाया, वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रेन, बड़ा बड़ा जो शिशु है, बड़ा चिल्ड्रेन, 2, 3, 4 का, सी वांट्स टू हैव ए स्लीप slide at a height of 3 meter height. देखो क्या है, 3 meter height. Slide this है and create an angle theta equal to 60 degree. ठीक है, with the ground. What should be the length of the slide in each case? স্লাইডের লেংথটা কতটা হবে দুটো ক্ষেত্রে. দুটো সামস क्या किया यहाँ पर, 2 सम्स अलग अलग करके तुम लोग करो. ये एक छोटा सम्स है, इसका साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सम्स पूरा अलग है. यार देखो पिक्चर ड्रा करने के बाद इजी हो गया. बिलो 5 years चिल्ड्रेन, एल्डर चिल्ड्रेन, अब कल क्या होगा, देखो क्या है, सिंपल सम्स. हमको स्लाइड का लेंथ मालूम होना चाहिए. देखो याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब एंगल मालूम होगा थीटा, और एक साइड मालूम होगा, कोई एक साइड, और थीटा जब आएगा ना, जो भी साइड हो, लेंथ, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तीनों चीज़ का अंदर कोई भी एक साइड और एक एंगल मिल जाएगा तो वो ट्रायंगल का बाकी जो प्रॉपर्टीज है आ जाएगा. ठीक है, ढूंढने के बाद कोई जरूरी नहीं है. तो देयरफॉर वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू क्या है, P/H. यहाँ से यह जाएगा, कॉस के लिए क्या होगा, आगे पीछे, साइन के लिए यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से या P/H. कॉस के लिए क्या होना चाहिए, दिस बाई दिस, आगे पीछे. और टैन का क्या है, शुरू से शेष तक. टैन का क्या है, शुरू से शेष तक. याद रखना ऐसे ही, P/B, P/B, ये तो बेस है. तो जाए वो सब छोड़ो, आप डिस्कशन हो गया सम्स का अंदर. साइन थीटा इक्वल टू क्या, P/H. ए वैसे साइन थीटा में साइन 30, ए भी क्या है 1.5, बस लिखो. यहाँ पर एज मिल गया 3 मीटर. तो स्लाइड लेंथ फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 इज 3 मीटर. सो सिंपल सम्स. देखा, सम्स देख कर घबराना मत, सो सिंपल सम्स. तो इसका साइड लेंथ मिल गया, ए भी सेम पीसेस में मिल जाएगा. तो क्या है, हाइट 3 मीटर बोल दिया, और एंगल 60 डिग्री. स्लाइड में P/H क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60. दिस आफ्टर कैलकुलेशन करने से हाई H1 मिलता है 2√3 मीटर. तो स्लाइड लेंथ ऑफ द एल्डर चिल्ड्रेन इज 2√3 मीटर. इट्स वेरी सिंपल, बट you don't afraid to see this the volume this question. Here is after at first you have to try it, drawing it, and listen. You can do or not. Okay. I hope after drawing picture you can solve it. This is the very simple sums. No complication. Here is no complication. Okay. Simple sums. Now next 4. Question number 4. 4 क्या बोल रहा है? देखो 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? The angle of elevation of the top of a tower
from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो कैसे पढ़ना है सम्स को ऐसे पूरा पढ़ने से तुम्हारा दिमाग खुलेगा नहीं. तुम एक एक लाइन पढ़ो और ड्राइंग करो, एक एक लाइन पढ़ो और ड्राइंग करो. कैसे करेगा देखो. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. और यहाँ पर क्या लिखा है, एलिवेशन. व्हाट इज एलिवेशन. देखो एलिवेशन क्या क्या किसको बोलता है. एलिवेशन में देखो एलिवेशन किसको बोलता है. एलिवेशन मीन्स सिर्फ एक धरो तुम्हारा एक रास्ता है, ये रास्ते से तुम जा रहा है, तुम यहाँ पर खड़ा है. ठीक है, यहाँ पर खड़ा है. देखो यहाँ पर तुम खड़ा है, तो यहाँ पर एक मकान खड़ा है. मकान का छात में तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, उसके साथ तुम बात कर रहा है. तो तुम जब फ्रेंड को नहीं देखा, तुम्हारा दृष्टि कहाँ तक था, इस लाइन बराबर पैरेलल था. तुम्हारा व्यू क्या था, ऐसे था. जब फ्रेंड की तरफ तकाया तब क्या किया ना, तुम ये 0 डिग्री से माथा को ऊपर तक तुला. ऐसे तुलने से तुम्हारा फ्रेंड का व्यू तुम्हारा पास आ रहा है. समझे ना. दिस इज कॉल्ड एलिवेशन. ठीक है, एलिवेशन इज द क्या है, जो तुम कितना एंगल तुम्हारा घर को, माने जो गला का अंदर फेस के नीचे जो होता है उसको कितना हिलाया ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक कितना हिलाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन. एलिवेशन इज एन एंगल. ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री टू अपर लेवल. ठीक है, 0 से 0 कौन होता है ना, तुम्हारा जो बेस है, तुम जहाँ पर खड़ा है वो बेस, और तुम्हारा जो व्यूज का लाइन है, हमारा बेस यहाँ पर है, हमारा व्यूज का लाइन इधर है, बेस का पैरेलल है. समझे ना, बेस का क्या है, पैरेलल है. हमारा व्यूज भी इधर है पैरेलल. इसको बोलता है हमारा बेस. यह से जितना एंगल तुम ऊपर घाट को तुलेगा, तुम्हारा आई जितना एंगल टर्न लेने से तुम्हारा एलिवेशन मिलता है. एलिवेशन मिलता है, तब तुम यहाँ पर कोई चीज़ होगा तो देख सकेगा. ठीक है, कोई चीज़ होगा तो यहाँ पर देख सकेगा. दिस इज कॉल्ड एलिवेशन एंड दिस इज द थीटा. ओके, चल एलिवेशन मालूम हो गया. ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या बोला ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये जो ग्राउंड है यहाँ पर तुम खड़ा है, तुम्हारा पहले इस तरफ क्या था, तुम्हारा व्यूज इस तरफ था, इसलिए 0 डिग्री था. 0 डिग्री से आहिस्ते आहिस्ते करके तुम्हारा मुंह ऊपर तोला. अपर लेवल करने से 30 डिग्री करने से तुम ये जो टावर का टॉप पॉइंट है इसको दिख सकता है. ठीक है, ठीक है, समझे ना. व्हेन यू रेज योर हेड, योर आईज from 0 degree to 30 degree, then you can see the top. 0 से 30 raise, not down. 0 से 30 raise करने के बाद तुम दिख रहा है. ठीक है, माटी के ऊपर टावर का टॉप दिख रहा है. इसीलिए दिस एंगल इज कॉल्ड एलिवेशन. याद रखना एलिवेशन किसको बोलता है. ठीक है, आप क्या हुआ, 30 डिग्री एलिवेशन हुआ. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द पोर्ट. तुम कहाँ पर खड़ा है ना, टावर का जो फुट है, फुट से 30 मीटर अपार्ट तुम खड़ा है. और वहाँ से तुम 0 डिग्री, तुम्हारा व्यूज कितना होता है, पहले क्वेश्चन में दिखा है पैरेलल बेस था, वहाँ से 30 डिग्री ऊपर किया तुम्हारा फेस को, तो अब ये टावर का टॉप तुम दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है. तो ये 30 डिग्री है एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन. मालूम हो गया. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. पहले तुमको टावर का हाइट मालूम होना चाहिए. देखो ये ट्रायंगल का जो पिक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पर क्या है,
बेस है जो 30 मीटर अपार्ट है, हम जो खड़ा है बिल्डिंग का टॉप टावर का दूर से, ये मालूम है। और हम तुमको तो पहले ही बोल दिया कि एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड मालूम होने से हम लोग का ऑल क्लियर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक साइड, वी नो दैट वन साइड एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दैट्स वाई all properties of the triangle are cleared. All properties of these triangles are cleared. Now how? AB equal to length of the tower P पकड़ लो, and this is the distance between the foot of the point where is the given, that is 30 meter. Therefore tan theta equal to P by B, that means AB by BC. tan theta का वैल्यू क्या है, थीटा क्या है 30 डिग्री, एंड P क्या है P, एंड BC क्या है 30. क्लियर? आई होप क्लियर. नाउ tan 30 का वैल्यू क्या है, जो टेबल चार्ट एक चैप्टर में किया, टेल में एक चैप्टर में किया. tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू P by 30. √3 इंटू P इक्वल टू 30. P इक्वल टू क्या हुआ 30/√3 आफ्टर गेटिंग सर्ड्स. सार्स तो मालूम है, नीचे रूट रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, रूट रखने से फिगर नहीं मिलता है, इसलिए √3 को √3 से मल्टी करो, और जेहेतु नीचे डिनोमीटर में √3 से मल्टी कर रहा है, ऊपर भी √3 में मल्टी करना है. तो करने से देखो क्या मिलता है, √3 करने से 3 होता है. ये मालूम है ना, √3 कैसे 3 होता है, हम लोग मालूम है, तब भी हम कर दे रहे हैं. यहाँ पर देखो √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू 3. तो रूट का नियम क्या है, प्रत्येक जोड़ा से एक निकलेगा 3. क्लियर है, बस हो गया. तो क्या हुआ 10√3 मीटर. कौन है ना P मिल गया. तुमको आंसर क्या मांगा था, आंसर मांगा था P मांगा था, लेंथ ऑफ द टावर. बस दिस इज द आंसर 10√3 मीटर. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, now we are going into the question number 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. This is the ground above the height, 60 meter height. Here is a kite. The string attached to the kite, this is the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. গ্রাউন্ডের উপর টেম্পোরারি টাইট বিধে রাখা হয়েছে. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Inclination is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. String এ কোনো সুতোর লুজনেস নেই. There is no loose into the string. ठीक है. Now, according to the question, we get a right angle triangle where is 60 meter, one side is given, angle is also given, then all is clear. Therefore, sin theta equal to P by H, PQ by PR. Sin theta equal to क्या है, P by H, PQ by PR, PQ by PR, height by hypotenuse. ठीक है, perpendicular by hypotenuse. Sin 60. This. After calculation, this is the very simple sums. Length of the string will be PR equal to 40√3 meter. Clear? Sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2. Clear? साइन एयर जितना एंगल है 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60, 90, साइन का सिर्फ साइन को याद रखना. साइन याद रहेगा तो हार्ड चीज याद हो जाएगा. उसके लिए ट्रिक्स है. हमारा जो डिग्री का चैप्टर था, वो चैप्टर ठीक से देखेगा, मालूम हो जाएगा कैसे याद रखना है. ठीक है. नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Suppose here is a building. क्या building? AC is a building, and here is the man, because here is given that the height of the man 1.5 meter, and that's why we have to take the man therefore we have to take the man object, not point object. मैन क्या बोल रहा है, ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है. एट द फर्स्ट पोजिशन एट द पॉइंट ई, हिज एलिवेशन इज 30 डिग्री, एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री of the point, top point of the building, 0 से 30, घर ऊंचा करके देख रहा है इसको, ऐसे ऐसे करके से प्रोसीड कर रहा है. सपोज ही वॉक्स डी डिस्टेंस, डी मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका ब्रेन माथा क्या होगा, और ऊंचा होगा, इसलिए इसका एलिवेशन 60 डिग्री हो गया वो स्टॉप देखने के लिए. क्योंकि हमको तो मालूम ही है जब हम बिल्डिंग का नियरर होगा, बिल्डिंग के नियरर होने से हमारा एलिवेशन और ज़्यादा, और फेस ऊपर करना है, ऊपर देखने के लिए. बस यही है पिक्चर. और दे दिया क्या ना, मैन का हाइट दे दिया, जा रहा है. और मैन का जो आई जो है, यहाँ पर आई है, इसलिए आई के लेवल से हम सम्स किया, मैन का फुट के लेवल से नहीं किया. तो फुट का लेवल क्या होगा, 1.5 मीटर यहाँ पर डिटेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से हम सम शुरू हो गया. ठीक है. और क्या दे दिया ना, बिल्डिंग का हाइट कितना है, 30 मीटर हाइट दे दिया. और हमारा हेड से मतलब आई लेवल से बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, हमारा आई लेवल से बिल्डिंग का हाइट होगा 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स 28.5 मीटर. क्यों हम लोग किया, ब्रेक किया, क्यों ना, हमारा जो राइट एंगल कवर किया, राइट एंगल ट्रायंगल कवर किया हमारा आई लेवल से, हमारा फुट लेवल से नहीं, आई लेवल से राइट एंगल ट्रायंगल कवर कर रहा है, इसीलिए आई लेवल का हमारा हाइट चाहिए. इसीलिए 30 मीटर से 1.5 मीटर ब्रेक करने के बाद मिला 28.5 मीटर. यही डिस्टेंस लेके हमको सम्स करना है. ठीक है, यही डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यही डिस्टेंस लेके हमको सम करना है. यही है हमारा हाइट और यही है हमारा बेस. पहले 30 डिग्री में दिख रहा है, जब बिल्डिंग का नियर हुआ तो 60 डिग्री में दिख रहा है. बस यही हमारा पूरा पिक्चर ड्रॉ हो गया. क्लियर. और ये तो हमारा बेस है और ये हमारा आई लेवल है. आई लेवल और बेस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द ट्रायंगल ABE. Here AC equal to 30 meter and D equal to distance covered by the boy. কতখানি distance cover করছে, D meter. Clear? Now from the triangle ABD, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, पहले सेक्शन करना चाहिए. कैसे ना, छोटा जो ट्रायंगल है ABD, और हमको क्या निकालना होगा जी, ये जो बॉय जो कितना डिस्टेंस कवर किया, यही मांगा. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ठीक है, व्हेन हिज एलिवेशन इज 60 डिग्री, 30 डिग्री इज इंक्रीज बाय 60 डिग्री. कितना वॉकिंग करने के बाद होगा, 30 मीटर. तो आप पहले एक छोटा बड़ा ट्रायंगल के ले लो.
छोटे वाला ट्रायंगल क्या है, ABD, AB राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर कौन कौन चीज़ मालूम है, नहीं ना 28.5 मीटर हमको मालूम है, 60 डिग्री मालूम है, तो यहाँ से हम BD मिल जाएगा। देखो क्या लिखेगा, tan 60 इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, दिस बाई दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होगा आगे पीछे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होगा शुरू शेष 28.5 बाई BD, बस 28.5 बाई BD tan थीटा tan 60। tan 60 का वैल्यू क्या है, √3/1 28.5 बाई BD, दैट मीन्स BD इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। BD अब निकलना होगा हमको BE, कहाँ ना, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, जो ग्रेटर राइट एंगल ट्रायंगल ABE, और B कितना होगा, B होगा या ना BD, देखो ये BD प्लस DE, ये बीच में एक पॉइंट था ना यहाँ पर BD, और D कितना था, D था, फ्रॉम पिक्चर में देखो BD प्लस D, क्लियर हो गया। अरे तो 28.5 मीटर और एलिवेशन 30 डिग्री, बस सेम फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू दिस tan थीटा इक्वल 28.5 अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, BD प्लस D, BD तो मालूम हो गया 28.5 बाई √3, BD का जगह में पुट कर दो, बस पुट कर लिया। आप इसको ऐड करो 28.5 प्लस क्या होगा, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है 1 बाई √3, और यहाँ पर 28.5, एक इसको 60 क्या किया है 9.5, ठीक है, क्यों 9.5 √3 हुआ, 9.5 √3 देखो इधर किया, ठीक है, कैलकुलेशन किया, देखो छोटा करके 60 बना है, 60, इसको 60 करने से मिलेगा √3 9.5 √3 मीटर, ठीक है, 28.5 बाई √3 में इसको 60 कर लिया 9.3 मीटर, एंड प्लस D आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, और D इक्वल टू क्या होगा ना, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस करने से मिलेगा 19 √3 मीटर, 28.5A माइनस 9.5A, तो माइनस करने से क्या मिलेगा 19A, √3 को ये पकड़ लो, बस हो गया √3 मीटर। द डिस्टेंस ही वॉक्ड इज 19 √3 मीटर, दैट इज द आंसर। क्लियर, सो सिंपल, सो सिंपल। पहले ड्राइंग करना है ठीक से, उसके बाद ब्रेकअप करके करके करो, देखो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सम्स में, समझे ना। क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है एक पॉइंट पकड़ लो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम किसका बॉटम, कोई चीज़ का बॉटम है, ठीक है, एंड द टॉप, बॉटम एंड टॉप का दोनों का एलिवेशन होना चाहिए ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, छत का ऊपर देखा कोई कोई मकान का ऊपर छत का ऊपर टावर रहता है ना, वो टावर क्या है, PQ है। हम लोग टावर का बॉटम लेवल भी रास्ता से दिख रहा है, टॉप लेवल भी दिख रहा है, ठीक है, we see the bottom level and the top level from the street, this is the road, street, bottom level Q है, टावर का ये क्या है, ये है टावर, तो टावर का हम क्या देख रहा है, बॉटम लेवल देख रहा है, कितने एंगल में 45 डिग्री से, और टॉप लेवल के देखने के लिए आउट थोड़ा एलिवेशन बढ़ाना होगा, घाड़ ऊंचा करना है 60 डिग्री, बस हो गया। क्लियर है, यही सांस में बोला, आर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ इट, और बिल्डिंग का हाइट क्या बोला 20 मीटर हाइट, बिल्डिंग का हाइट क्या है, की वर्ड है 20 मीटर,
ये क्या है? ये है बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। बस मालूम हो गया, बस पिक्चर ड्रॉ हो गया, बस। और क्या है, सब तो हो गया। तुमको क्या निकलना होगा? निकलना होगा पी क्यू, टावर का लेंथ निकालने के बोला। टावर का लेंथ कैसे मिलेगा? दिस माइनस दिस। ये कहाँ से मिलेगा? बड़ा ट्रायंगल से मिलेगा। और ये कहाँ से मिलेगा? छोटा ट्रायंगल से मिलेगा। तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके ड्राइंग कर लो। पहले कौन ट्रायंगल ड्रॉ किया? छोटा ट्रायंगल को, जो 45 डिग्री एलिवेशन जो है करो, 20 मीटर और रोड आर एस है, और हमको 20 मीटर ये तो हाइट बोल दिया था, ठीक है। ताले हम लोग को क्या चाहिए? आर एस चाहिए। क्यों ना, बड़ा ट्रायंगल में कुछ मालूम नहीं है। देखो जो बड़ा ट्रायंगल होता है पी आर एस, पी आर एस में देखो इसका साइड मालूम नहीं है, ये साइड याद नहीं है, ये साइड भी पूरा नहीं है, थोड़ा है। थोड़ा लेने से क्या होगा? पूरा हाइट चाहिए। और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, कोनो साइड का पूरी लेंथ नहीं है, ठीक है। देयर इज नो लेंथ ऑफ द triangle PRS, and that's why we have to use the smaller triangle QRS, and from this triangle we have to find out RS one side, which is equivalent to the triangle PRS. इसीलिए ये जो ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल यूज करने के बाद tan 45 इक्वल टू क्या है? दिस बाई दिस करेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस करने से मिलेगा आर एस। मिल गया आर एस। जब मिल गया तो ये बड़ा ट्रायंगल का एक साइड मिल गया, एक एंगल भी मालूम है, बस हो गया इजी। तो आर एस 20 मीटर हो गया। और इधर क्या है? इसको मालूम होना चाहिए पी आर कैसे होगा? देखो तो tan 60 का वैल्यू क्या है? पी आर बाई आर एस, पी आर बाई आर एस। और पी आर के अंदर क्या कौन कौन है? पी आर के अंदर पी क्यू भी है जो टावर है, और क्यू आर है। क्यू आर का मालूम है 20, और पी क्यू मालूम नहीं है, इसलिए 20 प्लस पी क्यू लिख दिया इसको। बस लिखो 20 प्लस पी क्यू। tan 60 का वैल्यू √3 है, बस। आर एस मालूम है, पहले मिल गया 20 मीटर। तो पुट करने के बाद पी क्यू मिल गया कितना ना? 20 √3 माइनस 20 कॉमन लो, √3 माइनस 1 मीटर। If you get into the question √3 का value 1.732, then you have to use 1.732. Otherwise, it is not necessary to use 1.732. You can write the answer 20 into √3 minus 1 meter. This is clear. Clear? I hope better clear. Thank you. Now, this is so easy. देखो ये जो छोटा ट्रायंगल है आर एस पी क्यू, 20 प्लस पी क्यू मीटर, 20 प्लस पी क्यू। पी आर का वैल्यू क्या होगा? 20 प्लस पी क्यू, बस लिख दो। 20 मीटर मिल गया। अब tan 60 का वैल्यू क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस बाई दिस। आफ्टर कैलकुलेशन पी क्यू इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन लो, दिस इज द आंसर. If into the question it is given that the value of √3 equal to 1.732, then you have to use 1.732 here is at the place and getting the answer in decimal PQ. But here is not given the √3 ka value, and there is no necessary to use √3 equal to 1.732. This is the answer. Clear? Now question number 8. 8 क्या बोल रहा है? What does it say? A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. Same tower का मापिक सम जो है, ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? ये वाला स्टैचू है, ये वाला पेडिस्टल है, ठीक है। आगे का सम्स में क्या था? ये वाला बिल्डिंग था, ये वाला टावर था, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेडिस्टल है, यहाँ पर स्टैचू है। देखा तो कोई मूर्ति कोई खंबा का ऊपर खड़ा रहता है, ये पेडिस्टल खंबा होता है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. The angle of elevation of the top of the statue, angle of elevation of the top of the statue, ठीक है, is 60 degree. Clear? देखो, top of the statue बोला, statue का top यहाँ पर है, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. टॉप ऑफ द पेडिस्टल क्या है? ये तो वाला पेडिस्टल किसको बोलते हैं? ऐसे गोल थंबा होता है, एक गोल थंबा होता है, तब उसका ऊपर एक मूर्ति आवक को रहता है, इसको पेडिस्टल बोलता है. द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल का एंगल क्या है? 45 डिग्री है. देखो सेम सम्स है. क्लियर हो गया? From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree and find the height of the pedestal. तुमको pedestal का हाइट निकालना होगा. तो यहाँ पर क्या दे दिया? सिर्फ स्टैचू का लेंथ दे दिया 1.6 मीटर. बस. तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको? इसको मालूम होना चाहिए. इसको मालूम होने के लिए एक जो छोटा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का कोई एक साइड हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन कोई साइड मालूम नहीं है. एंगल मालूम है 45 डिग्री, लेकिन कोई साइड नहीं है. तो ये इस साइड मिलेगा कहाँ? ना बड़ा ट्रायंगल से मिलेगा. बड़ा ट्रायंगल से मिलेगा. बड़ा ट्रायंगल मीन्स ए सी डी. देखो ए सी डी ड्रॉइंग किया. यहाँ पर 1.6 प्लस एक्स मीटर है, 60 है. तो देयरफॉर परपेंडिकुलर है, दिस है. ठीक है, हमको क्या मालूम होना चाहिए? कॉमन. देखो आगे का जो प्रॉब्लम था, दोनों ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल का कॉमन साइड्स कौन है? कॉमन साइड्स आर एस है. तो याद रखना, कभी यही जो पिक्चर आएगा ना, जो कॉमन साइज जो है आर एस, वो निकलना फर्स्ट. वो निकलने से क्या होता है? बड़ा ट्रायंगल का एक साइड मिल जाता है. यहाँ पर भी देखो दोनों ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी डी, दोनों का अंदर कॉमन साइज कौन है? सी डी है. तो सी डी कहाँ से मिलेगा? सी डी बड़ा ट्रायंगल से मिल लो. बड़ा ट्रायंगल क्या है? 1+6 प्लस इसको x पकड़ लो. हाइट, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इक्वल टू x मीटर एंड एटा के निकालना होगा. ठीक है, तो ऐसे हो गया. तो क्या होगा? tan 60 इक्वल टू AC बाई सी डी. tan 60 का वैल्यू √3. ये क्या है? 16 प्लस एक्स बाई सी डी. सी डी इक्वल टू क्या होगा? 16 प्लस एक्स बाई √3. एक नंबर इक्वेशन काट दो. उसके बाद जो छोटा ट्रायंगल जो है क्या है? बी सी डी ड्रॉइंग करो. बी सी डी का एक्स है, 45 डिग्री है, और सी डी तो मालूम हो गया 16 प्लस एक्स बाई √3. बस यहाँ पर 16 प्लस एक्स बाई √3 मीटर, ये पुट कर दो. क्लियर हो गया? आप tan 45 का वैल्यू क्या मालूम है ना? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी सी बाई सी डी कर लो. एक्स बाई सी डी, तो सी डी इक्वल टू एक्स. ठीक है, लेकिन सी डी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं किया. सी डी का वैल्यू निकाला एक्स, और यहाँ पर सी डी का वैल्यू मिला 16 प्लस एक्स बाई √3. यहाँ पर डायरेक्ट लिखने से भी तुम्हारा हो जाता है, सेम ही इक्वेशन हो जाएगा. ए लाइन मिल जाएगा. कहाँ है? ए वाला लाइन मिलेगा, ए वाला लाइन मिल जाएगा. डिवाइड सी डी का जगह में एस पुट करेगा तो, कारण बी सी एक्स है और सी डी यही है, तो √3 ऊपर चला जाएगा. करने से ए लाइन ही आ जाएगा, लेकिन करने का कोई जरूरी नहीं है. हम जैसे किया यहाँ पर ऐसे ही करो. क्या है? सी डी इक्वल टू पहले मिल गया, और ई जो ट्रायंगल का है कॉमन जो साइड सी डी है, सी डी बी को यहाँ पर मिलाओ एक्स होगा. ठीक है, tan 45 का 1 और बी सी बाई सी डी माने एक्स बाई सी डी. सी डी इक्वल टू एक्स. एक और दो कंपेयर करने से क्या मिलेगा? दिस इक्वल टू एक्स, दिस इक्वल टू एक्स. बस हो गया. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. इसका तो नीचे 1 है, ए मिलेगा. एक्स को उस तरफ ले जाओ, एक्स कॉमन लो, √3 - 1, यहाँ पर 1.6, √3 - 1 एक्स. बस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 16 बाई √3 - 1 मीटर आंसर. लेकिन हमारा एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर ई नेवर राइट रोट. ओके, इसको सर्च करना है. तो यहाँ पर क्या है? a माइनस बी है, इसीलिए इसको a प्लस बी से मल्टी करना है. देखो यहाँ पर a प्लस बी से मल्टी किया, तो नीचे जब a प्लस बी से मल्टी किया तो ऊपर भी a प्लस बी मल्टी करना है. ये 60 एक सम्स है,
ये रूल है, रूल से रूट मल्टी करो, करने के बाद देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर जैसे है रहने दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करने से क्या मिलता है, रूट 3 का स्क्वायर करने से मिलता है 3 और -1, 3 - 1 करने से 2 मिलेगा, और 1.6 को 2 से डिवाइड करने से 0.8 मिलेगा। तो देयरफॉर आंसर विल बी 0.8 इंटू क्या है, रूट 3 + 1 मीटर। चलो एक्स का वैल्यू मिल गया। एक्स क्या था एक्स क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, बस मिल गया। देखो और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही लिखा। और रूट 3 का स्क्वायर करने से क्या मिलता है, 3 मिलता है, कैसे होता है वो भी दिखाया। क्लियर। और यहाँ पर आंसर नहीं लिखा, आंसर लिखने का जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा तुम लोग लिखेगा देयरफॉर क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल विल बी x मीटर, दैट मीन्स क्या है 0.8 इंटू रूट 3 + 1 मीटर। क्लियर। Similarly into the questions here, if here is given the root 3 equal to 1.732, then you have to use at the place of root 3 you have to use 1.732, and after that your answer will be in decimal. ठीक है, clear. Now question number 9. Question number 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, the angle of elevation of the top of the building, एक बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि बिल्डिंग के टॉप से फुट का बॉटम, टावर का फुट, तो दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, रास्ता के इस पर उस पर। तो रास्ता के इस पर क्या है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, टावर है, टावर का लेंथ बोल दिया, हाँ ये टावर इज 50 मीटर हाई, टावर इज 50 मीटर हाई, बस यही लिखो। बिल्डिंग तो छोटा होगा, टावर बड़ा होगा, ये तो याद है। चलो क्या बोला, फर्स्ट लाइन क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, इसका एलिवेशन कहाँ से एलिवेशन होगा, एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर, एलिवेशन सी पॉइंट से, माने कि फुट ऑफ द टावर, यहाँ से एक आदमी जब बिल्डिंग का टॉप देख रहा है उसका एलिवेशन 30 डिग्री होगा। ठीक है, एलिवेशन यह रखना, सब समय बेस लेवल से ऊपर जाना है एंगल, बस हो गया। और दूसरा, वही आदमी जब बिल्डिंग के नीचे में आ गया और वो टावर को देख रहा है, तब उसका एलिवेशन ऐसे क्या है, 0 से 60 डिग्री हो गया, 0 से 60 डिग्री हो गया, यही एलिवेशन है। समझो ना क्या बोला। तो क्या फॉर्म हुआ, दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट निकालने के बोला, बस। तो हाइट 1 मीटर पकड़ लो, पहले दो ट्रायंगल को अलग अलग कर लो। अब देखो, जब दो ट्रायंगल का बात आएगा, याद रखना उसका अंदर कॉमन साइड्स कौन है, कॉमन साइड्स एक ट्रिक्स है, याद रखना। जब दो ट्रायंगल आएगा उसका कॉमन साइड्स कौन है, BC। एनी हाउ यू हैव टू फाइंड BC। BC कैसे मिलेगा, देखो उसके बाद सेकंड स्टेज में चिंता करेगा, छोटा छोटा थिंकिंग थॉट चिंता करके, साम्स कभी कठिन नहीं होता है, छोटा छोटा चिंता करके आगे बढ़ो। और जनरल थॉट करना चाहिए, साधारण थॉट, कॉम्प्लिकेटेड थॉट चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है। कब करेगा कॉम्प्लिकेटेड, जब देखेगा जनरल थॉट्स करके, थिंकिंग करके हमारा साम्स नहीं हो रहा है, तब क्रिटिकल कोई चीज़ है उसको ढूंढना है, याद रखना। पहले सहज रास्ता में जाओ, उसके बाद जटिल रास्ता में जाएगा। सहज रास्ता क्या है ना, BC कॉमन है, तो BC को निकालो। कहाँ निकलेगा, देखो कौन ट्रायंगल में साइड दे दिया, इस ट्रायंगल में साइड दे दिया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अलग कर लो। तो क्या, कौन ट्रायंगल का नाम क्या है, DCB, देखो DCB, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ABC। तो मैं पहले ABC पहले कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ABC पहले मत करो, तो अभी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ना, इस ट्रायंगल के यूज़ करके हम BC निकालेगा, और इस ट्रायंगल के यूज़ करके हम BC निकालेगा, ये भी कर सकता है। लेकिन तब भी हम बोल रहा है, जब करेगा तो जहाँ पर BC निकल जाएगा तुरंत से,
वही ट्रायंगल को पहले पकड़ के कर लेगा। तो सपोज ये पहले किया, पकड़ लो इसको पहले किया, पकड़ लो, ठीक है, इसको पहले किया, सोच लो जो ये पहले हुआ, तो BC कॉमन है। यहाँ पर देखो ट्रायंगल का साइड दे दिया, तो इस ट्रायंगल यूज़ करने से हमारा BC निकल जाएगा। तो ये पहले लिखो, इसको लिखने के बाद क्या मिला, tan 60 इक्वल टू दिस, तो BC इक्वल टू क्या मिलेगा, 50/√3। आफ्टर सर्च वी गेट 50√3/3 मीटर, बस BC मिल गया, ठीक है। आप BC किसका अंदर है, BC किसका अंदर है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल का अंदर है, वो ट्रायंगल ड्रा करो। इसको सेकंड स्टेज में करेगा, हम मैंने एब्सेंट माइंड में ये पहले कर लिया, इसको पर क्यों ना, दोनों ट्रायंगल में BC सेम है, इसीलिए BC निकालना है, इसको BC निकाला, इसको BC निकालो, ये x मीटर पकड़ लिया। चले क्या हुआ, tan 30 इक्वल टू क्या हुआ, AB/BC, दैट मीन x/BC, बस हो गया। BC इक्वल टू क्या है, x√3 मीटर, क्लियर। चलो BC भी मिल गया, यहाँ पर भी BC भी मिल गया, दोनों BC सेम होना चाहिए, इसलिए x√3 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 50√3/this। देखो कंपेयरिंग 1 and 2 है इधर, उधर है 1, तो क्या हो गया, x√3 इक्वल 50/√3 आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है। इसके अंदर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बट नहीं तो √3 यहाँ पर इंटू में है, इधर लेके चलाओ, डिवाइड हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 50/3 16 and 2 मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.2/3 मीटर। इज दैट क्लियर? These are so simple sums, height and distance. Clear? Thank you. এই ধরনটা রাখতে হবে, আর যাতে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, কারণ আমি সব সময় কিছু না কিছু কোনো না ক্লাসে দিই, হয়তো তোমার ক্লাসের কাজেই লাগবে, মনে করে সাবস্ক্রাইবটা করে রাখো। সব রকম লোকের জন্য, যারা চাকরি পরীক্ষা দিচ্ছে, যারা কলেজে পড়ছে, যারা স্কুলে পড়ছে, অল বোর্ডস, অল টাইপ অফ স্টুডেন্টসের জন্য আমি কিছু না কিছু সবসময় দিয়ে থাকি। সেই জন্য সবাইকে বলো নিজেরাও সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং সবাইকে বলো সাবস্ক্রাইব করে রাখো। থ্যাংক ইউ।